Okay, so let's start this video and let's start the letter B because as we have already completed a phrasal verb with the letter A in my previous video, आप वहाँ पे जा सकते हैं and you can watch that video also. So let's start with the next letter, that is B letter. As it contains a lot of phrasal verbs. There is a lot of phrasal verbs, but actually they are very important to learn and they are very important to you have to know about them. Not every thing, or I would say not every phrasal verb, but mostly the famous one, or mostly the I would also tell you about which one are mostly probably used, but second thing is that also simplify that, simplify कीजिए इसको so that आप इसे जल्दी आप कर सकें because it's simply the meaning of that word hidden in it. So the first one is back away. Starting with the back away. Back away means retreat or go backwards. Just retreat का मतलब as you know that it's like you have to just go backward, और किसी चीज़ को मना कर देना, किसी चीज़ से पीछे हट जाना. It's like that. So the crowd backed away when the man pulled knife means पीछे हट गए. Okay? So आप उस समय ये जो back away है इसका इस्तेमाल कर सकते हो. That is back away. Coming to next, that is back down. Now what is back down means is retract or withdraw your position, proposal और proposal in an argument. तो किसी भी argument में, किसी भी या फिर किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में आप किसी चीज़ से रिट्रैक्ट हो रहे कर रहे हो अपने आप को, या उस चीज़ से आप अपना पीछा छुड़ा रहे हो. ओके, सो दैट इज विड्रॉ कर रहे हो. सो बैक डाउन, दैट इज शी रिफ्यूज टू बैक डाउन एंड वॉज फायर्ड. ओके, सो बैक डाउन करना, पीछे मुड़ना, विड्रॉ करना अपने आप को उस चीज़ से, उस भी सिचुएशन से, वट एवर इट इज़. Coming to that next, that is back into enter a parking area in reverse or reverse gear. तो जब भी हम किसी पार्किंग एरिया के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, अभी इसके बाद जो अगला है वो एग्जिट वाला होगा, बट ये है इनटू. इनटू का मतलब एज यू नो जस्ट गोइंग इन टू दैट to something. So there is enter parking area and reverse gear. आप किसी पार्किंग एरिया में रिवर्स ऑटो में जा रहे हो, रिवर्स गियर लगा के जा रहे हो, तो आप उसे कह सकते हो बैक इनटू. एंड ही प्रेफर्स टू बैक हिज कार इनटू द गैरेज. फॉर एग्जांपल, I'll make the sentence like I usually prefer or usually go back into the garage of my home, or drive my car back into the garage of my house. So that it is. Now coming to next, that is back off. Retreat करना, यानी अगेन पीछे मुड़ना, पीछा छुड़ाना एक किस्म का. So please don't the protesters to back off means आप पीछे हट जाओ. Okay, like you must have seen a lot of newspapers, a lot of news that's about पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को कहा कि पीछे हट जाओ. So you can use in English, how you can use this sentence in English. It's like police told the protesters to back off means to just पीछे हट जाना. Okay, coming to back out. Again, fail to keep an agreement or arrangement or promise. किसी arrangement, किसी promise को fail to keep करना मीन्स उसे नहीं कर पाना. ठीक है, बैक आउट जैसे हम बोलते हैं, दैट इज़ वेरी यूज्ड अ लॉट. तो यू कैन मार्क दिस एज कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बैक आउट. तो बैक आउट का मतलब है फेल टू कीप एन अरेंजमेंट. ओके, इट्स लाइक दैट. तो अब इसका सेंटेंस आ रहा है, ही बैक्ड आउट 2 days बिफोर द हॉलीडे सो वी गिव द टिकट टू हिज सिस्टर. यानी उसने अपने आप को उस प्रॉमिस को तोड़ दिया, वो पीछे हट गई. यू कैन
use like that. Coming to the next one, that is back out of. Back out of का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं. Fail to keep an agreement, arrangement. Okay, I'm not zooming it because yeah, I think that's the good thing to do along with the sentences you can have. Just get it to it. I'm asking about that. That was back out of. Okay, fail to keep an agreement, arrangement. Again the same one. Again मना कर देना या उस चीज़ को नहीं कर पाना because of any kind of situation or any kind of emergency. One must have, like, she backed out of the agreement at the last minute. Last minute उसने उस agreement से back out कर दिया. ठीक है, यानी again back out था यहाँ पे, as you can see यहाँ पे back out था, यहाँ पे back out off. ठीक, यहाँ पे back away था, this was different, this was back down, this is back into, this is also different, this is also. But this and this, these are somehow same. So what is same is this and this are somehow same. So what is same in it is, I've written mess, I would say this and this is somehow same. So fail to give an agreement, fail to keep something. Okay, keep and promise. Now coming to next, that is back out of, यानी exit the parking area. As I already told you, first जो था ये था back into, यानी अंदर आना. ठीक है, लेकिन रिवर्स किया, आप बाहर जाना, exit करना, but in a reverse we are also back out of. Usually लोग इसी वे में कार को अंदर करते हैं या कार को बाहर निकाल देते हैं, so that ईज़िली हो, कन्वीनियंट हो उनके लिए बाद में एग्जिट या एंटर करने के लिए रिवर्स में. तो बैक आउट ऑफ, बैक इनटू, आई थिंक दे आर ऑल्सो वेरी फेमस. यू कैन यूज दिस इन योर सेंटेंसेस एज वेल, एंड आई थिंक कमेंट डाउन और कॉपी देम और नोट डाउन ऑन योर नोट्स एंड मेक सम sentences of that. Backed rolls out of its parking space. Now back up. Okay, back up. That's very, I think you have seen this a lot. Means आप बहुत ज़्यादा WhatsApp बैकअप लेते हो, गैलरी का बैकअप ले लेते हो, a lot. So what does it mean here? This one, backup. Make a copy of कंप्यूटर डेटा. ठीक है, किसी भी डेटा का आप कॉपी कर लेते हो, गैलरी का, वेदर एनीथिंग, तो आप बैकअप इस्तेमाल कर सकते हो. देन द सेंटेंस इज लाइक you should always back up important document files so that you won't lose all your work. Something goes wrong, that's very easy. Yeah, you should, आप यूज़ कर रहे थे जब you never know about कि ये भी एक फ्रेज है, but we're using that because it is actually a combination of that, and when you are actually reading about it, that makes a different sense, or that makes a different thing to learn about that. आप चीज़ों को जानते होते हो, बट जब आप उसको समझते हो, एक ऑर्डर, एक प्रोसेस, व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द टर्म बिहाइंड दैट, दैट इज फ्रेजल वर्ब्स. यू आर यूजिंग एक्चुअली दैट, एंड that's very important in English language. Then coming to backup, that's another one. Backup means support. किसी को support करना. For example, now 3 तरह के बैकअप है. ये भी बैकअप था, ये भी बैकअप है, ये भी है, ये भी है. तो ये इतना याद रखना ना, 3 बैकअप है. एक बैकअप है कंप्यूटर वाला, एक बैकअप है सपोर्ट वाला. कि the rest of the staff backed her up when she complained about working conditions. तो बाकी के स्टाफ ने उसको backed up किया. तो यहाँ पे backed up है, आप सोच रहे होगे कि ओहो यहाँ तो बैकअप लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बैकअप लिखा हुआ है. नहीं, अब क्या होगा? नहीं, एक्चुअली इसका वर्ब फॉर्म चेंज हो गया. इट्स नथिंग लाइक दैट, बिकॉज इन दिस इट्स आस्किंग अबाउट, शी इज आस्किंग अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन हैपन इन द पास्ट. That's why backed हो गया. ठीक है, so that's why use हो चुका है, and which means support. That's also very important, most probably used, I think. So take on that, backup, support. I'll make a sentence on it. Backup, support. Okay, he
backup on him, or he always backed up me whenever I faced any kind of trouble in my life. Okay, then again a backup comes here, which is the third one. Okay, so the third one backup is drive a vehicle backwards. कोई vehicle को backward उल्टा चलाना, ठीक है. Tom backed up without looking and ran over his laptop. उल्टा चला दिया, ठीक है. तो 3 याद रखना. बैकअप फर्स्ट मेक ए कॉपी ऑफ कंप्यूटर डेटा, बैकअप 2 सपोर्ट करना, बैकअप 3 ड्राइव करना व्हीकल बैकवर्ड्स. बैग आउट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इतना याद रखो कि बैग आउट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. ये थोड़ा मोस्टली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत बात करते हैं. डोंट बैग आउट यानी कि क्रिटिसाइज मत करो, जज मत करो, ठीक है. जस्ट डोंट बैग आउट, इसका कहने का मतलब. देन बॉल आउट. ओके, ये थोड़ा आई थिंक आई मस्ट हैव टू ड्रॉप दैट. देन कमिंग टू दिस, देयर इज बॉल आउट. ओके, व्हाट डज इट मीन बॉल आउट? Okay, so what does it mean? Bail out, sorry. I must have seen another thing because आगे bail out भी आ जाएगा, but यहाँ पे bail out, save या rescue करना, ठीक है. तो government had to bail out the airline because it was losing so much money. यानी कि किसी चीज़ को सेव कर रहे हो, किसी रेस्क्यू करवा रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे 3 देख रहे हो bail out. इसका एक मतलब याद रख देना, इसका मतलब है रेस्क्यू. ओके, इनका एक ही मतलब है, वो है रेस्क्यू. बेल आउट का मतलब रिमूव वाटर फ्रॉम समथिंग दैट इज फ्लडेड. आप बोलोगे ये तो रेस्क्यू मतलब नहीं है. इसका भी मतलब रेस्क्यू है ना, कि आप किसी सिचुएशन से वाटर को निकाल रहे हो, ठीक है. ये रेस्क्यू ही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है, ठीक है. उसके बाद आ रहा है बेल आउट. जंप आउट ऑफ प्लेन बिकॉज इट इज़ गोइंग टू क्रैश. अपने आप को बचा रहे हो, रेस्क्यू करवा रहे हो, तो इनका मतलब तो एक ही है भाई. इनका याद रख लेना, दैट इज सेम. एंड व्हाट इज द सेंटेंसेस देयर? लेट्स जस्ट गो विद द पायलट वाला. द पायलट बेल्ड आउट व्हेन ही सॉ दैट द इंजन हैड फेल्ड. तो उसने अपने आप को बेल्ड आउट किया, यानी अपने आप को जंप करवाया, वहाँ से बचाया, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट गो टू बेल आउट. इट्स कंप्लीटेड. देन गो टू द नेक्स्ट, दैट इज बेल आउट ऑफ. Okay, now bail out of it's different. Bail out on है उसके बाद जो different अलग है. तो pay a bond to release someone from jail. किसी को जेल से निकालने के लिए एक बॉन्ड है, कोई मनी कुछ देना. I must bail my drunken brother out of jail. मुझे अपने आप के ब्रदर को बचाना पड़ेगा, ठीक है. bail out of what? Out of jail. Out on. Okay, so what does here it is? Bail out on. Bail out on का मतलब होता है stop supporting someone when they are in trouble. Everybody bailed out here when the scandal blew. तो कहने का मतलब है कि support करना, किसी को बंद कर देना. Bail out on. Bail out of का देखो कि किसी को bail करवाने के लिए मदद करना. Bail out on का मतलब याद रखो कि किसी को सपोर्ट करना बंद कर देना, ठीक है. Then coming to next, that is bail out. Affect someone and delay them. किसी से बात करना और डिले करवाना, ठीक है. I was late because you bailed me up on the phone and couldn't shut up. किसी से बात करते करते कोई आपसे बात कर रहा है, आपको डिले करवा रहा है, ठीक है. It's intentional, so bail out. इतना याद रखो. It's very I would say it's very good to use in sentences because it enhances its meaning, plus it makes it kind of very native speaker of that language, plus very knowledgeable of that language. Then bail up means talk to someone and delay them. किसी से बात करना, उसे delay करवा देना. Then another is bail up. Rob someone at gun point. किसी को गन के पॉइंट पे रख दो, ठीक है. They was bailed up by a couple of muggers as they came out of the bank. तो that is also bail up. bail up दो है. एक bail up याद रखो कि डिले करवाने वाला, दूसरा bail up याद रखो कि
गन पॉइंट पे रखना, यानी उसको ज़बरदस्ती उसको बहुत ज़्यादा परेशान करना। देन बाला, कंफ्यूज और मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। बाल, बी, बाल्स, ये तीन है, दिस, ओके, ये तीन है। अब इन तीनों का मतलब देखते हैं क्या है, ओके। तो चलिए इनका मतलब देखते हैं। फर्स्ट, बाल, कंफ्यूज और मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देना। न्यू प्रोजेक्ट हैज बॉल्ड मी अप, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। रोल अ फॉर्म इनटू अ राउंड शेप, ठीक है, किसी चीज़ को राउंड शेप में फॉर्म करना, बिकॉज बॉल तो ऑलरेडी राउंड होता है, तो ऑब्वियसली ये है। He balled up his napkin when he had finished eating. Okay, the new project has balled me up. I have no idea what to do. यानी कि कॉम्प्लिकेशन करवा दिया। Balls up, spoil, ये इम्पोर्टेंट है। Balls up, he balled the presentation up, यानी कि उसने उस प्रेजेंटेशन को बिल्कुल ख़राब कर दिया। He, यहाँ पे क्या लिखा है? He balls up, balls the presentation up, उसने पूरी प्रेजेंटेशन को स्पॉइल कर दिया। देन बैंग अबाउट, सो व्हाट डज इट मीन? बैंग अबाउट, ये बैंग अबाउट, मूव इन अ प्लेस मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। बैंग का ऑलरेडी मतलब होता है शोर मचाना, तो इट्स बैंगिंग अबाउट किचन, ओके, शोर मचा रहा है किचन में चलते चलते। बैंग अबाउट, बैंग अराउंड, अगेन सेम मीनिंग, बिल्कुल सेम मीनिंग। बैंग अराउंड, अराउंड हो गए इधर उधर, अबाउट हो गया कि बस मतलब शोर मचा रहा था इधर उधर, शोर मचा रहा था यहाँ वहाँ, कह सकते हो। बैंग अबाउट, बैंग अराउंड, वेरी सेम। देन कमिंग टू बैंग ऑन, टॉक एट ग्रेट लेंथ, बोलते जाना, इट्स लाइक बक बक मशीन। सो ही बैंग्ड ऑन फॉर हाफ एन आवर बट नो वन वाज लिसनिंग, यानी बहुत बोलना, तो बैंग ऑन करना, ओके। देन बैंग ऑन अबाउट, यानी कि keep talking about something, okay, what talking about something, this bang on about, is always banging on about something, तो बोलते जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बैंग ऑन, मतलब कभी कभार हम बोलते हैं कि वो कितना बोलता रहता है, मतलब उस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या फिर यूजुअली भी बोलता रहता है, तो आप बोलोगे कि बैंग ऑन अबाउट, he always bangs on about cricket, he always bangs on about movies, about web series, he always bangs on about movies, music, a lot of social media things and all. So bangs on about. Now, as you know, now coming to bang out, play a musical instrument like bang out, okay, so you can make it as a caption। अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, नीचे कैप्शन ये बैंग आउट, यानी नहीं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, बैंग आउट मीन प्लेइंग द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लाउडली, शी बैंग्ड द ट्यून आउट ऑन द पियानो। देन कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज बैंग अप, पुट समवन इन प्रिजन, द चांस बैंग हिम फॉर 8 years। किसी को यहाँ पे कोई सेम नहीं है, ये डिफरेंट है बैंग अप, इसका मतलब किसी को प्रिजन में डालना, जेल में डाल देना। बैंग अप अगेन से डैमेज बैडिंग, ही बैंग हिज कार अप लास्ट नाइट, यानी डैमेज कर दी उसने अपनी कार को बिल्कुल, ठीक है। दो सेम है, एक का मतलब याद रख देना पुट समवन इन प्रिजन, दूसरे का मतलब डैमेज कर देना बहुत ज़्यादा। बैंक ऑन, count or rely on, I'm banking on your help and computer. That is very beautiful, it is a beautiful way to answer, beautiful in the sense कि इसका मतलब देखो, बैंक ऑन का मतलब है रिलाई करना, भरोसा करना, मैं तुम्हारे पे भरोसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंटेंस है I'm banking on your help, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प पे रिलाई कर रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प
making me understand that things or whatever, because I can't do it much more perfect than you.